Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion, in which in the last video we have discussed about momentum of conservation of linear momentum in system of particles. Today we are going to start a new topic, cross product और वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बेटा हम फोर्थ चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको क्या बताया था? द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी. The definition of this product is given as magnitude of A, magnitude of B into sine theta into n cap, where n cap will represent the direction. Magnitude of A into magnitude of B into sine theta will give you the magnitude of the A cross B. And you know that the direction of A cross B is given by right hand thumb rule or screw rule. I told you earlier as well, when you will put your fingers at A vector and you will curl your fingers towards B, then the thumb will represent the direction of A cross B. That is always perpendicular to the plane containing A vector and B vector. Okay. Now if you will go for sine theta, then sine theta can be given as magnitude of A cross B upon magnitude of A into magnitude of B. आई होप ये आपको क्लियर हुआ. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा. अब हम इससे आगे देखते हैं. देयर आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर क्वांटिटी होती है. अगर आप किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, देन दैट विल रिजल्ट यू 0. इफ यू आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर लाइक I cross J, I cap is the unit vector in x direction while J cap is the unit vector in y direction. It will give you the K cap. If you will change the direction, it will give you negative K cap. In the same way, you can go for J and K and I. Now, the next point is when you will take the two vectors, A vector is equal to AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap, and B vector is equal to BXI cap plus BYJ cap plus BZK cap. And if you will go for the A cross B, then you have to solve this IJK. Now AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. इसको आप कैसे करते हैं बेटा? जिस रो और कॉलम में आई कैप आपका लाई कर रहा है, यू हैव टू लीव दैट रो एंड कॉलम, रिमेनिंग को आपको ओपन करना है. इन द सेम वे जिसमें आपका जे कैप लाई कर रहा है उसको लीव करो और रिमेनिंग को आप ओपन करो. तो दिस विल गिव यू अ रिजल्ट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप. मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आप क्या करते हो? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का अंडर रूट. तो लेट अस सपोज ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. इन सबका स्क्वेयर करके अंडर रूट करके आपका इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अब इससे आगे देखते हैं. एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी बेटा क्या होती है? v इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर टाइम. टाइम. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो आपका ये क्या होगा बेटा? दिस इज ए रिजिड बॉडी. इसके ऊपर एक पॉइंट P था. जब ये रोटेट करती है रिजिड बॉडी z एक्सिस के अलोंग, तो आप क्या देखेंगे? यहां पर आपका P पॉइंट T टाइम में डेल्टा T इस डेल्टा T टाइम में आपका पॉइंट जो है वो P से P डैश के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. The angular displacement is basically delta theta, while the linear displacement is along the arc of this is equal to delta S. Now, as you know that circle is a curve and the linear direction of linear velocity at a curve can be find out by the tangent at that particular point. So this V is representing here the direction of velocity. If you are going to find out angular velocity, then you can define it angular displacement upon time, that is delta theta upon delta T. Delta is representing here average angular velocity, and I told you earlier as well, when you have to convert average thing into instantaneous, then you have to put a limit delta T tending to 0. तो आपका instantaneous angular velocity will become limit delta T tending to 0, delta theta upon delta T. अब इससे आगे बढ़ते हैं हम. ये चीजें आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी. तो V कैन बी डिफाइंड एज लीनियर वेलोसिटी डेल्टा S अपॉन डेल्टा T. दिस इज इंस्टेंटेनियस, सो यू हैव टू पुट अ लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इनटू R.
When you will put this value here, then it will give you delta theta into r upon delta t. It means delta theta upon delta t into r. Delta theta upon delta t अभी क्या देखा, omega. That will give you omega cross r. So this is the relation between v and omega. v is equal to omega cross r. अब हम क्या देखेंगे बेटा कि v की डायरेक्शन क्या होगी या ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी. जो भी आपका v और r का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज ओमेगा आपका लाई करेगा. तो अब इससे आगे देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों. एंगुलर एक्सेलरेशन होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन टू यू एंगुलर एक्सेलरेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. बेसिकली बेटा जो काम आपका लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स करता था वही काम आपका रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा. तो लेट अस सपोज दिस इज अ 3D सिस्टम, XYZ एक्सिस है. यहाँ पर हमने O पॉइंट एक ओरिजिन लिया है, P पॉइंट के ऊपर इसका पोजीशन वेक्टर R ले लिया है, P पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है F. तो आपका जो टॉर्क है दैट कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F. सो R क्रॉस F विल गिव यू द टॉर्क. The definition of moment of force or torque both are the same thing can be given you r f sin theta n cap, and you know that the resultant of cross product always in perpendicular direction to the plane containing the two vectors. So tau will lie always in the perpendicular direction r and f. Now you have to see the मैग्नीट्यूड ओनली. टाउ इज इक्वल टू में आर साइन थीटा इंटू एफ. आर साइन थीटा क्या होगा बेटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा आर का. दिस इज आर साइन थीटा. You have to draw this angle is theta, opposite angles are equal, so this component is r cos theta, this is r sin theta, so this is r sin theta. So you can say that f into r का perpendicular component will give you the magnitude of torque. So tau is equal to में r perpendicular into f. इन द सेम वे एफ साइन थीटा भी ले सकते हो. तो बेटा आपको आर के ऊपर एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना होगा, दैट विल गिव यू एफ साइन थीटा. सो टाउ विल बी इक्वल टू आर इंटू में एफ परपेंडिकुलर. ये टाउ आपका वेनिश कब कब हो सकता है, जब आपका या तो आर जीरो हो या तो आपका एफ जीरो हो, और थीटा इक्वल टू जीरो या 180 का केस होगा. इन दैट केस ऑल्सो योर टाउ विल जीरो. अब हमारी बात है कि हमारा टाउ की डायरेक्शन रिवर्स कब कब हो सकती है. टाउ हमें पता है रिजल्टेंट किसका है, वेक्टर प्रोडक्ट का है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. इसका रिजल्टेंट जीरो कब होगा, या तो आप आर की डायरेक्शन को रिवर्ट करें या एफ को, आइदर वन, तो आपका टाउ का डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आप आर और एफ दोनों की डायरेक्शंस को रिवर्ट कर देते हो तो नेगेटिव नेगेटिव करके आपका ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपने आर और एफ की डायरेक्शन को रिवर्ट कर दिया है, बट आपका जो टाउ है उसकी डायरेक्शन सेम बनी रहेगी. तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई. अब इससे आगे हमारा आता है एंगुलर मोमेंटम. इसकी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू.